Good morning, student. So in this second video we will resume the topic, a question of trust from the book Footprints Without Feet. A question of trust in the lesson, in the story. Horace Denby is a respectable person and he used to steal things once a year in order to meet his needs of reading rare and expensive books. In order to fulfill his desire, he broke into a house, and let us resume the topic from here. When he entered the house, he found a dog. It was wagging its tail in a friendly way. And then Horace Denby said that if you call a dog by its name, he will behave with you in a friendly way. So let's see what happens next. There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servants returned. Horace Denby, when he entered the room, he saw flowers on the table, a bowl of एक बड़ा सा कटोरा. Horace felt his nose tickle. थोड़ी सी sensation हुई उसके नाक में, जो कि because he was suffered from allergy, hay fevers. He gave a little sneeze, उसने छींक मारी, and then put down his bag, अपने बैग को जिसमें equipment रखे थे उसको नीचे रखा. He carefully arranged his tool, उसके जो टूल थे, सामान था, उसको अरेंज किया, केयरफुली ध्यान से रखा. He had 4 hours before the servants returned. उसके पास 4 घंटे थे कि 4 घंटे के अंदर within the 4 hours he could execute his plan of stealing, and then the servants were expected to come. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safe all his life. ताला तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था. It was not a difficult job for him because he had been doing this kind of job for hours. So he thought that it was easy job. The burglar alarm was poorly built. और जो अलार्म थी, जो एक चेतावनी देती थी, वार्निंग देती थी अगर कोई एंट्री करे, तो वो पुअरली बिल्ट, काफ़ी मीन्स लो क्वालिटी की थी. He went into the hall to cut its wire, और हॉल में इसकी वायर को काटने के लिए जाता है ये. He came back and sneezed loudly, फिर वापस आके एक जोरदार तरीके से छींक मारता है. As he smelled the flowers came to him again. फिर वो फ्लावर्स को जो स्मेल करता है, उसकी जो सुगंध से उसकी नाक में टिकलिंग होती है, सेंसेशन होती है, उससे उसको एलर्जी होती है, हे फीवर. फिर वो सी स्टार्ट स्नेजिंग. How foolish people are when they own valuable things. वो कहता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास पैसा आता है, valuable things वो होनी शुरू हो जाती हैं. Horace ने ऐसा सोचा. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a safe. कहता है लोग पैसा होने के बाद बड़े मूर्ख हो जाते हैं. एक राइटर ने अपने आर्टिकल में इस घर की पूरी जो सिस्टमेटिक ढंग से क्या यहाँ पे लिविंग रूम है, किचन कहाँ पे है, सेफ कहाँ पे, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, और ये भी बताया कि सेफ इज बिहाइंड ए पेंटिंग. ये इतना पूरा डिस्क्राइब किया. तो उसने कहा, ही थॉट दैट द पीपल्स बिकम्स फूल व्हेन दे हैव लॉट ऑफ मनी. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. और Horace ने सोचा कि hindering होता है to stop somebody to do something. तो obstacle थे ये flowers को कि वो they were creating allergy. He was sneezing to smell them. He buried his face in his handkerchief. और अपने उसने face को handkerchief से ढका, covered किया. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it?" A cold hay fever. फिर अंदर से एक आवाज़ आई डोरवे से, दरवाजे से, कि ये क्या है, hay fever, कोई एलर्जी. Before he could think, Horace said, "Hay fever," and
फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, उसने बिना देखे कहा ही फीवर है और फिर से स्नीजिंग स्टार्ट कर दी। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, अब उसने कहा कि इसको एक ट्रीटमेंट के द्वारा से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर आप ये चीज़ पा लें, डिस्कवर कर ले, फाइंड कर ले कि विच प्लांट गिव यू ट्रबल, देन यू कैन गेट इट cured. I think you had better see the doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of house just now. और अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, you should go to the doctor for the treatment. और कहता है ये मैंने आवाज़ सुन के I heard you from the top of the house just now. अभी अभी मैंने आपकी वॉइस सुनी है टॉप बिल्डिंग से और मैं यहाँ पे आई, वो कोई आया है यहाँ पे पर्सन। It was quite kindly voice, but one with firmness in it. ये एक आवाज़ काफ़ी शांत थी, दयालु थी, काइंडनेस थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी फर्मनेस थी, स्ट्रॉन्गनेस थी, स्ट्रॉन्गली थी वॉइस। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. एक महिला दरवाजे के ऊपर खड़ी थी और शेरी रबिंग उसको रगड़ रहा था, जैसे कि he was licking, finding her friendly. She was young, quite pretty and was dressed in red. Young थी, जवान थी, सुंदर थी और रेड ड्रेस पहने हुए थे। She was clad in red dress. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. वो fireplace यानी कि हार्थ अंगीठी के पास गई और अपने जो गहने ornament को settled किया। Down Sherry, she said, anyone would think I had been away for a month. उसने अब शेरी कुत्ते का के डाउन नीचे उतरो, उसने कहा एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि हम तो एक महीने के लिए वहां यहाँ से गए हुए हैं। सी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, हॉरेस की तरफ वो मुस्कुराई और कहना जारी रखा, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं समय पर ही आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को ये उम्मीद थी कि वो उसको जाने देगी, क्योंकि वो सीम्ड टू अम्यूज, उसको देख के खुश हुई थी, उसको कुछ उम्मीद थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. वो इस संकट से बच सकता था अगर उसको सही तरीके से ट्रीट करता महिला को। I didn't expect to meet one of the family. लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, और इस कहता है कि कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे आ जाएगा। She nodded, उसने yes nodded, shake head in the agreeable sign. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you doing? What are you going to do? हाँ, मैं ये मानती हूँ, उस महिला ने कहा कि ये आपके लिए असुविधा की बात है, इनकन्वीनियंस, आप ये क्या करने जा रहे हैं। Horace said, my first thought was to run. पहले ही जो मेरा विचार है वो है यहाँ से मैं भाग जाऊँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them about you. They would get you at once. निसंदेह आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन मैं, महिला ने कहा, पुलिस को फ़ोन करूँगी और वो आपको पकड़ लेंगे। हॉरेस ने कहा, हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स, निसंदेह, कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, देन, मैं पहले टेलीफोन वायर को कट करूँगा और फिर ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, स्टेमर्ड हुआ। ए स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग मोर सम टाइम, और मैं पहले ये सुनिश्चित करूँगा कि आप कुछ भी ना कर पाएँ। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त रहेंगे, सफिशिएंट रहेंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, वो सीरियसली उसे गंभीर होकर, क्या आप मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस रिपोज्ड एंड देन सेड, हॉरेस रुका और फिर कहना उसने शुरू किया, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मेरे हिसाब से मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, और इसने ऐसा कहा। और फिर महिला ने रिप्लाई किया, यू डिडंट फ्राइटन मी, आप मुझे नहीं डरा पाए। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me.
हॉरिस ने सुझाव दिया कि इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा कि अगर आप भूल जाएं कि आपने मुझे देखा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। अब आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, थिक हुई। उसने महिला ने कहा, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रोब मी, आप मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं आपको जाने दूं तो आप किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए जैसे कि आप हैं। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए खतरा हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उनसे ही चोरी करता हूँ जो धनवान होते हैं, वेल्दी होते हैं, वेल ऑफ होते हैं। आई स्टील फॉर वेरी गुड रीजन, और मैं सही वाजिब कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जो जेल के विचार से भी घृणा करता हूँ। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो महिला हंसी और हॉरिस गिड़गिड़ाया। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, शायद उसने उसको मना लिया होगा ऐसा सोचकर। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे वैसे तो अधिकार नहीं आपसे कुछ कहने का, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, उदास हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, आई रियली मीन इट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा इस प्रकार का कोई भी काम मैं नहीं करूँगा, और वास्तव में ही नहीं करूँगा, आई मीन इट। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो महिला चुप रही, watching him closely, उसको ध्यान से देखा हॉरिस को, और then said, फिर कहा, आप जेल के नाम से शायद डर गई, क्या आप नहीं डरी? She came over to him, shaking her head, अपना सिर हिलाते उसके पास आई, हॉरिस के पास। I have always liked the wrong kind of people, मैंने हमेशा ही गलत लोगों को पसंद किया है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने एक टेबल से she picked up a silver box उठाया टेबल से और उसमें से सिगरेट निकाले। हॉरिस eager to please her, उसको खुश करने की अंदाज में हॉरिस ने, and seeing that she might help him, और ये देखकर शायद उसकी सहायता करे, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अपने ग्लव्स उतारे और अपना जो लाइटर था सिगरेट जलाने का वो उसको दिया महिला को। You will let me go, he held the lighter towards her, लाइटर को ऐसा आगे पकड़ते हुए कहा कि आप मुझे जाने दोगे? Yes, but only if you will do something for me, हाँ जाने दूंगी अगर आप मेरे लिए कुछ करते हैं तो। Anything you say, कुछ भी जो आप कहें, हॉरिस ने ऐसा कहा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से कहा था कि जो ज्वेलरी है वो बैंक में रख दें, बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं यहाँ सेफ में रख के भूल गई, रख दिया। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू द पार्टी टुनाइट, और मुझे एक पार्टी में इनको पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसलिए मैं इनको लेने के लिए ऊपर से नीचे आई। हॉरिस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? और शायद फिर हॉरिस ने कहा कि शायद तुम इसका नंबर भूल गई हो जो सेफ को ओपन करने का होता है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, ओ यंग लेडी ने जो थी, शी वॉज ऑल्सो ए लेडी थिफ, शी वॉज ट्राइंग टू बेफुल हॉरिस एंड शी डिड दैट इवेंचुअली। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, अब उस महिला ने कहा हाँ ऐसा ही है। जस्ट लिव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद एन आवर, अब हॉरिस ने उसको कहा जस्ट लिव इट टू मी, ये काम मेरे पे छोड़ो, एंड यू विल हैव दैम विद एन आवर, 1 घंटे में मैं इसको कर दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, अब महिला ने कहा कोई नहीं इसको तोड़ो कि मेरे पति 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस सेफ को ठीक करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे में हॉरिस ने उसको सेफ को तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसको महिला को ज्वेलरी दी और
वहाँ से खुशी खुशी आ गया। For 2 days he kept his promise to the kind lady. 2 दिन तक उसने अपने प्रॉमिस को, जो काइंड लेडी जिसको वो कहता है, उसको उसने 2 दिन तक तो चोरी करना उसने बंद रखा। On the morning of 3rd day, तीसरी दिन सुबह, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. He thought of the books he wanted. फिर उसने उन बुक्स के बारे में सोचना शुरू किया जो वो चाहता था। And he knew he would have to look for another safe. फिर उसको एक दूसरी तिजोरी की ज़रूरत होगी इसके लिए, उसने उसके बारे में सोचा, दूसरी सेफ के बारे में। But he never got the chance to begin his plan. लेकिन उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का कोई अवसर, चांस नहीं मिला। By noon a policeman had arrested him for the jewels robbery at Shotover Grange. एक पुलिसमैन आया और शॉर्टओवर ग्रेंज में जो उसने एफर्ट्स किया था, और उस महिला ने कहा था कि इट्स माई सेफ, प्लीज़ ओपन इट, आई फॉरगॉट द नंबर, एंड शी सेड दैट शी हैड टू वियर फॉर द पार्टी एंड शी लेट हिम गो। तो उस स्टोर शॉर्टओवर ग्रेंज में रॉबरी के लिए एक पुलिस वाला आया और उसको अरेस्ट कर गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. क्योंकि उसने जो सेफ थी उसको बिना ग्लव्स के खोला था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे कमरे में थे। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house asked him to open the safe for her. और किसी ने उसे इस बात का विश्वास नहीं किया कि घर की महिला जो मालकिन थी, उसने हॉरेस डैम्बी को सेफ ओपन करने के लिए कहा था। इस बात का किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। Nobody trusted him. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब वो जो तेज तर्रार महिला थी, बूढ़ी महिला, 60 साल के घर के मालकिन, उसने कहा कि ये सारी जो कहानी जो ये हॉरेस डैम्बी कह रहा है, ये बकवास है, इट्स नथिंग ट्रूथ इन दैट। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन ए प्रिजन। अब हॉरेस जो है, हॉरेस डैम्बी असिस्टेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल में। ही ओपन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। अब उस महिला के बारे में सोचता है वो, उस चार्मिंग सुंदर महिला के बारे में जो उसी के प्रोफेशन में थी, फीमेल थिफ थी। एंड वो ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको धोखा दे दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ओनर अमंग द थाइप्स। और वो है हॉरेस डैम्बी बिकम वेरी एंग्री व्हेनेवर ही फाइंड पीपल टॉकिंग अबाउट द ओनर अमंग द थाइप्स। के चोरों में भी आत्मसम्मान होता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात जब वो सुनता, ही बिकेम वेरी एंग्री। तो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी वेरी वेल। हॉरेस डैम्बी वॉज वेरी क्लेवर थिफ, but that lady was even cleverer than him. She outwitted him, she surpassed him, got all the jewelry herself, and Horace Danby was sent to prison for what he had never done. So this is the clear message that a person has to pay for his wrongdoing. And secondly, there are so many people more cleverer than others in the world. They are capable to outwit the person who thinks himself very clever, as the same things happened with Horace Danby. He thought himself very clever thief. Every year he stole things successfully, but this time he met a lady thief who was more cleverer than Horace Danby, and he was sent to prison because of his foolishness, and he was sent to prison for what he had never done. So student, this was very interesting story. I hope you enjoyed well. Try to read it, learn it time again, read it. Till then, keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you all.